Morning, all. Hope you all are doing good. I, Ravi, welcome you all in this morning worship session. And I wish and I pray that whosoever is watching this morning worship, they will be blessed in the Lord. And before going into the worship, I'd like to read few passages from the Psalm 8. Lord, our God, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens through the praise of children and infants. You have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild and birds in the sky, and the fish in the sea, all that swim in the paths of the seas. Lord our God, how majestic is your name in all the earth. Hope you all are blessed. Let's go into the worship. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. In great and glory in creation, now revealing you our cry. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is, nothing compared to thee. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without you. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a wonderful name it is, nothing compared to thee. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord, the name of Jesus. Yes, God, we love to worship you. That could not hold you, the weight of before you, silent the bosom, sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raising life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ our King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ our King.
What a powerful name it is. What a nothing can stand against it. What a powerful name it is. The name of Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर रवि का, जिन्होंने इतने अच्छे गीत के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कराया। थैंक यू ब्रदर रवि। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं, प्रभु में एनकरेज्ड हैं और निरंतर प्रभु में बढ़ रहे हैं और मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी आप लोग प्रभु में आनंदित हैं। हालांकि ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये पैंडेमिक सिचुएशन, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कईयों के पास जॉब नहीं है, कई घर में ही बैठे हुए हैं, या अगर जॉब में भी जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस है। आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है और कई बार हम ऐसे धीरे धीरे उस निराशा में जकड़ जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हमें घेर लेता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप ऐसे परिस्थिति में हैं? और अगर ऐसे हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ वो ये है कि आज परमेश्वर हमारे बीच में जो वचन लेकर आए हैं वो यही हमें सिखाने जा रहा है कि किस प्रकार से हमारा डिसअपॉइंटमेंट जॉय में बदल सके। फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट टू जॉय, किस प्रकार से हमारी निराशा, मायूसी, उत्साह, हर्ष और आनंद में बदल सकता है। हम देखते हैं भजन संगीतकार दाऊद राजा भजन संगीता 30 उसके 11वें पद में इस प्रकार से कहते हैं, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। तूने मेरे टाट को, जो दुख का जो वस्त्र है, उसको उतरवा कर मेरे कमर पर आनंद का पटुका बांधा है। वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ दाऊद राजा कहता है। हम उसी के पहले पद में इस प्रकार से देखते हैं, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। और उसके 5वें और दूसरे भाग में हम इस प्रकार से देखते हैं 5b, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। वीपिंग may tarry for the night but joy comes with the morning। रात को चाहे हमें रोना पड़े, आंसू के साथ बिताना पड़े, लेकिन हमारा जो सवेरा होगा वो आनंद के साथ होगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे, उसके वचन पर अगर हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे विलाप को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो वो हमारे सारे दुखों को हटाता नहीं है। धर्मी पर विपत्ति जरूर पड़ती है, लेकिन परमेश्वर उन्हें उनमें से निकालता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर कोई डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमें जरूर निकालेंगे। आज हम इसी विषय पर देखने जा रहे हैं। वचन में देखने से पहले मैं 2 सिचुएशन आपके सामने लेकर आता हूँ। एक है 1980s से, जब अमेरिका के कुछ प्रांतों में, कुछ जगहों पर एक विशेष प्रजाति के भेड़िए, वुल्फ, विलुप्त होते जा रहे थे। वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आगे खत्म होने को थे। तब वहां के गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक योजना बनाई, और वो ये था कि अगर कोई भी एक जीवित भेड़िए को पकड़ कर लेकर आते हैं तो उसको $5000 इनाम में दिया जाएगा। कोई भी अगर एक जीवित भेड़िए को पकड़ कर लेकर आते हैं तो उनको $5000 इनाम में उसके प्रतिरूप में उनको दिया जाएगा। काफी सारे लोग उत्साहित हुए, काफी सारे लोग इस काम में लग गए, और उनमें से 2 जने थे, सैम और जेड।
ये दोनों मित्र थे और ये लोग एडवेंचर पसंद करते थे, जंगल सफारी पे जाते थे। तो ये लोगों ने निर्णय लिया कि ये भी जीवित भेड़ियों को पकड़ कर लेकर आएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। इन्होंने पूरी तैयारी की और जंगल की तरफ निकले। कई हफ्ते निकल गए, कई महीने निकल गए, लेकिन इनके हाथ कोई भी जीवित भेड़िया नहीं लगा। एक रात जब वो अपने कैंप में विश्राम कर रहे थे, अंधकार में इनको कुछ गुर्राने की आवाज आती है। जब वो उस टेंट से बाहर निकल कर देखते हैं तो करीब 40-50 भेड़िए गुर्रा रहे थे। रात का अंधकार और 40-50 भूखे भेड़िए। जेड अपने मित्र सैम से कहता है कि यहाँ पे हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा अंत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों मिलकर 40-50 भेड़ियों से लड़कर जीत नहीं सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत सैम अपने फ्रेंड जेड को कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर रिच, बधाई हो, हम अमीर हो गए। एक ही सिचुएशन दो जने दो प्रकार से लेते हैं, उनकी नजरिया अलग अलग है। इसी प्रकार से एक और घटना, एक और परिस्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 2 सेल्स मैनेजर को एक रिमोट विलेज में भेज दिया, एरिया में भेज दिया। वहां पे लोग शूज, चप्पल, सैंडल्स ये कुछ नहीं पहनते थे। वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे। ये दोनों वहां पे पहुंचते हैं और जैसे ही देखते हैं यहाँ पे लोग बहुत गरीब है, इनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, पाँव में तो जूते, चप्पल किसी के पाँव पे उन्होंने नहीं देखा। एक मैनेजर तुरंत अपने कंपनी को मेल करता है, कहता है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई हैव दिस बैड न्यूज दैट दिस विलेज इज अ गॉड फॉरसेकन विलेज। मेरे पास एक दुखद संदेश है कि ये जो गांव है ये परमेश्वर का त्यागा हुआ एक गांव है, एक जगह है। यहाँ पे लोगों के पास चप्पल तक नहीं है, जूते नहीं पहनते हैं ये लोग। मेरे और हमारे कंपनी का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत दूसरा मैनेजर अपने कंपनी को लिखता है, वो कहता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी हियर, नो वन वियर्स फुटवियर हियर। यहां पे कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप मुझे कम से कम 5000 जोड़े जूते चप्पल भेजें। एक ही परिस्थिति, दो जन दो तरीके से लेते हैं, दो नजरिए से देखते हैं। आज मैं फील कर सकता हूं, यकीन है हम में से कई लोग इस प्रकार के सिचुएशन से जा रहे होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से और इस महामारी से लड़ रहा है। हर जगह डर का एक माहौल है। हम अपनों से मिलने के लिए डरते हैं, कहीं वो कोविड-19 वो वायरस हम तक ना फैल जाए। हम सब सहमे हुए हैं, घर में रह रहकर हम फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। ये परिस्थिति सबके जीवन में होगा, लेकिन क्या हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं? क्या वो सिचुएशन हमें निराशा की ओर लेकर जाता है, या वो सिचुएशन हमें हर्ष और आनंद और उत्साह की ओर लेकर जाता है? हम पौलुस के जीवन से, पौलुस के बताए हुए लेसन से आज हम कुछ बातें देखेंगे। वो कहता है कि ये परमेश्वर की शांति है जो हमें इस सिचुएशन से दूर रख सकता है और हमें सुरक्षित रख सकता है। हम उसके लिए पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 7वां पद। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, बाहर है, वो हमारे हृदय और हमारे मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी।
तब हम व्याकुल नहीं होंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हम यहाँ पे 3 बातें इसी अध्याय फिलिपियों चैप्टर 4 वर्ड्स 6 to 13 से हम 3 बातें देखने जा रहे हैं। पहली बात हम जो देखते हैं वो है चूज जॉय इन टाइम्स ऑफ एंग्जाइटी। पहली बात, चूज जॉय इन टाइम्स ऑफ एंग्जाइटी। परेशानी और चिंताओं के बीच में हमें आनंद को चुनना है। परेशानी और चिंताओं के मध्य में हमें आनंद को चुनना है। चुनाव हमारा है, हमारे पास ऑप्शन है। हम उस एंग्जाइटी को पकड़ के रखते हैं कि आनंद की खोज में जाकर आनंद को हम चुनते हैं। हम उसके लिए इसी अध्याय के 4 अध्याय के 6 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Do not be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो और इन बातों को अपने परमेश्वर के पास लेकर आओ। अगर आपको पता है कि आपका परमेश्वर कौन है, तो आप किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहेंगे और आनंदित रहेंगे। हम कई बार पौलुस और सीलास के जीवन से सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय उसके 22वें पद को हम पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। और यह आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। हम देख रहे हैं किस प्रकार से पौलुस और सीलास को प्रभु की सेवकाई करने के कारण, सुसमाचार सुनाने के कारण उनको एक कठोर सजा दी गई। उनको साधारण जेल में नहीं रखा गया था, लेकिन भीतर की कोठरी में, जहां पे उनके हाथ पांव सब जकड़े गए, चेन से बांधे गए, वो हिलडुल नहीं सकते थे। मेरे को लगता है अगर हम, आप और मेरे जैसे साधारण लोग होते तो वो वहां पे बैठ के शायद कंप्लेन करते कि प्रभु, जब मैं आपकी सेवकाई कर रहा हूँ, जब मैंने अपने जीवन आपके लिए मैंने डेडिकेट कर दिया है, समर्पित कर दिया है, फिर ये क्यों, आप मेरी चिंता क्यों नहीं करते हैं परमेश्वर। हम शायद अपने कंप्लेंट्स को वहां पे लेकर आते। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि कौन कंट्रोल में है। वो उस परमेश्वर की महानता को, उसके सामर्थ को जानते हैं, इसलिए वो कंप्लेन नहीं कर रहे होते हैं, वो आनंद को ढूंढ के वो आनंद मना रहे होते हैं। हम 25वें पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खुश करने वाला, मनोहर बात है ये। वो दोनों चिंता नहीं कर रहे थे, वो दोनों परेशान नहीं थे, लेकिन उन्होंने आनंद को चुनना बेहतर समझा और वो जानते थे पूर्ण रीति से परमेश्वर पे डिपेंड होना, समर्पित होना, समर्पण करना आनंद का शुरुआत है, आनंद की खोज है, आनंद परमेश्वर से मिलता है। मैंने एक मिशनरी के बारे में इस प्रकार से सुना, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद चाइना में ये घटना हुआ है। एक मिशनरी जो परमेश्वर के सेवा, सुसमाचार सुनाता रहता है, सरकार ने उसको पकड़ा और उसके सुसमाचार सुनाने के कारण उसको एक बहुत बड़े नाले में, एक बहुत बड़े गटर में डाल दिया। वहां पे कीड़े मकोड़े, चूहे, बदबू, असहनीय बदबू, उसमें वो अंधकार, उसमें उसको डाल दिया गया। लेकिन वो वहां पे परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला कोई नहीं है, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आने वाला है। वो उस कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज आप और मैं कठिन परिस्थिति में
उस कठिन परिस्थिति को किस तरीके से लेते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का कंट्रोल है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका चैप्टर 43 वर्स 1 और 2 हम देखेंगे। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम लोग भूकंप के मध्य में क्यों ना हो, हम लोग बाढ़ के मध्य में क्यों ना हो, हम लोग बंदी गृह में क्यों ना हो, हम लोग भुखमरी में क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है आई हैव रिडीम्ड यू, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यू आर माइन, तू मेरा ही है। परमेश्वर कह रहा है यू आर माइन। अगर हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने हैं तो हमारे ऊपर कोई भी आँच कैसे आ सकता है? हम यकीन के साथ उस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद ही दे रहे होंगे। पहली बात जो हमें ध्यान देना है, चूज जॉय इन टाइम्स ऑफ एंग्जाइटी। परेशानी और चिंताओं के मध्य में हमें आनंद को चुनना है। दूसरी बात पौलुस हमें इस प्रकार से सिखाते हैं, इन एन इमोरल वर्ल्ड चूज पाथ ऑफ प्योरिटी। इस भ्रष्ट अपवित्र संसार में हमें पवित्रता का मार्ग चुनना है। भ्रष्ट और अपवित्र संसार में हमें पवित्रता का मार्ग चुनना है। हम फिलिपियों 4 अध्याय उसके 8 और 9 पद को हम देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। आमीन। जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, उचित है, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण है, हमें ऐसी बातें करनी है। ऐसे विचार सिर्फ करना ही नहीं, हमारे मन में भी अगर है तो ऐसी ही बातें होनी चाहिए। पवित्रता, हमें पवित्रता के मार्ग पर चलना है। पौलुस यहाँ पे कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है, सुनी है और देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। क्या आज हम भी पौलुस के समान लोगों को कह सकते हैं कि तुम मेरे जीवन को देखो, मेरी बातों को सुनो और उसका अनुकरण करो, उसको फॉलो करो? क्या हम सच में ऐसा एक पवित्र मसीह जीवन जी रहे हैं कि हम दृढ़ता के साथ कह सकें दैट यू फॉलो मी, कि तुम मेरा अनुकरण करो? पौलुस यहां पे कहता है, क्योंकि जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। हम जानते हैं ये हमारे खुद के बलबूते पे नहीं हो सकता, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, लेकिन हमें भी उसमें अपना योगदान देना। पिछले हफ्ते हमने देखा था बरनबास पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था। दोनों चीजें कार्य करना चाहिए। यहां पे हमें देखना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। हम खुद से नहीं जी सकते, मैं मानता हूं, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। परमेश्वर हमें ऐसा एक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। मैं अभी रिसेंटली
अपने स्कूल डेज के फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड किया गया। मैं बहुत खुश था कि इतने सालों बाद, करीब 24-25 सालों बाद मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने का सौभाग्य मिला। कुछ क्षणों के लिए मैं बहुत आनंदित था, लेकिन कुछ ही घंटों में और मैक्सिमम एक दिन में मैं उनसे इतना परेशान हो गया, क्योंकि वो उस ग्रुप में इतने सांसारिक बातें, ऐसी बातें जो अभी पौलुस हमें कहते हैं कि हमें ऐसी बातों पर मन नहीं लगाना है, वही बातें वहां पे वो लोग शेयर कर रहे थे। और जल्दी मुझे वो ग्रुप छोड़ना पड़ा। मैं कहना ये चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी एक बदलाहट लेकर आए हैं। जो बातें मुझे पहले, जो मुझे आनंद देती थी, अब वो मुझे आनंद नहीं देती है, वो मुझे खुश नहीं करती है, उससे घृणा आती है। क्या हमारे जीवन में भी इस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है? क्या हम संसार से अनुकूल होकर नहीं, संसार के अभिलाषाओं में होकर नहीं, लेकिन मसीह की पवित्रता की ओर क्या हम बढ़ रहे हैं? हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है, इसके संसार के पैटर्न से हमें नहीं जीना है, लेकिन अपने मन के परिवर्तन से, by the renewing of our mind, एक नया मन उत्पन्न होना है, जो इस संसार की अभिलाषाओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता से बनती है। दूसरी बात जो हमें ध्यान देना है, in an immoral world, choose path of purity। इस भ्रष्ट और अपवित्र संसार में हमें पवित्रता का मार्ग चुनना है। तीसरी बात जो पौलुस हमें फिलिपियों उसके 4 अध्याय से सिखाते हैं, वो है लर्न टू बी कंटेंट इन एवरी सिचुएशन। लर्न टू बी कंटेंट इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है, हमें खुश रहना है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 11, 12 और 13 पद। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर करता सकता हूँ। हूँ। I can do all things through him who strengthens me। हम जानते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, खुशहाली आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पल हम आशीषों से भरते हुए रहेंगे, उसके शावर्स और ब्लेसिंग्स हर पल हमारे जीवन में रहेगा, ये उसका अर्थ नहीं है। एक सच्चे मसीह को हर रोज अपना क्रूस उठाकर चलना होता है। परमेश्वर का वचन कहता है राइचियस पर, एक धर्मी पर विपत्ति जरूर पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उसको उसमें से निकालता है। सुख दुख एक मसीह जीवन का भाग है, दुख भी है उसमें। ये कुछ इस प्रकार से है। मैं स्मरण करता हूं जब मैं छोटा था तो तितलियां, बटरफ्लाइज हम सबको पसंद है क्योंकि उसमें ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। जब मैं उनको पकड़ने के लिए जाता था तो वो मुझसे दूर भागते थे। जितना मैं उनको पकड़ना चाहता था वो उतना ही मुझसे दूर
भागते थे। और आज कई सालों बाद जब मैं अपने बालकनी में बैठता हूँ जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं, काफ़ी सारे बटरफ्लाइज आते हैं, पास में बैठ जाते हैं। कई बार जिस कप में मैं चाय पी रहा होता हूँ उस कप में आकर बैठ जाते हैं। कई बार मेरे शोल्डर पर, कॉलर्स पर आकर बैठ जाते हैं। वो खुद ब खुद वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन जब हम उसको चेस करते हैं, जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे दूर जाता है। परमेश्वर की आशीषें भी कुछ इसी प्रकार से है। जब हम इस आशीषों के पीछे जाते हैं, भागते हैं, तो वो हमसे भी भागते हैं। लेकिन अगर हम अपना मन, हृदय परमेश्वर की बातों पर लगाते हैं, तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं। अय्यूब कि जीवन से हम सब अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने पहले अध्याय और उसके 21वें पद, उसके दूसरे भाग में इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले भी लिया। और वही अय्यूब उस दूसरे अध्याय के 10वें पद, उसके दूसरे भाग में इस प्रकार से कहते हैं, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? जो परमेश्वर हमें सुख देता है, क्या दुख भी नहीं ले सकते हैं? तो हमें हर सिचुएशन में ये जानते हुए कि परमेश्वर कंट्रोल में है, हमें आनंदित रहना है। We need to learn to be content in every situation. हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, पौलुस हमें परमेश्वर के वचन से इस प्रकार से सिखाते हैं जो हमने अभी पढ़ा, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हर सिचुएशन में तृप्त रहना उसने सीखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हर परिस्थिति में हमें ज्ञात होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कंट्रोल में है। और उसी परमेश्वर ने यशायाह नबी उसके चैप्टर 43 और 2nd वर्स में कहा है, For I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. तुम मेरे हो। जब वो परमेश्वर ने ये वादा हमसे किया है, जब वो परमेश्वर हमारा अपना है, तो किसी भी परिस्थिति में हम परेशान कैसे हो सकते हैं? हमने जिस प्रकार से सैम और जेड के जीवन से देखा और वो 2 सेल्स मैनेजर के जीवन से देखा, उनके सबके दोनों के परिस्थिति समान थी, लेकिन उनकी नजरिया अलग अलग थी और उसका कॉन्सिक्वेंस भी अलग अलग रहा, उसका परिणाम भी अलग अलग रहा। आज हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उसको क्या मसीह के नजरिए से देख पाते हैं, तो उसका परिणाम भी, प्रतिफल भी अलग होगा, आनंदित होगा, उत्साह से भरा होगा, हर्ष से भरा होगा। आज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा यह ज्ञान दे कि किस प्रकार से हम डिसअपॉइंटमेंट से जॉय में जा सकते हैं, फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट टू जॉय एंड एक्साइटमेंट। निराशा से, मायूसी से हम किस प्रकार से परमेश्वर के उत्साह को, हर्ष को और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबके जीवन को मसीह में आनंदित और तृप्त, फुलनेस से परमेश्वर हमें भर दे। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर सैम का कि उन्होंने हमारे बीच में ये वचन बांटा, हमें फिर से याद दिलाया कि हमारी निराशाओं को, हमारी मायूसी को प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कैसे आनंद में और जॉय में बदल देता है। धन्यवाद इस धन्य वचन के लिए और इस वायदे के लिए जो परमेश्वर ने हमें किया है कि वह अभी कभी भी हमें निराश नहीं रहने देगा। तो आइए अब हम एक गाना गाएंगे, छू लूं तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, कैसा अनोखा तेरा प्यार है।
प्रभु बोलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर तेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे है मसीह। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। बोलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू 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 है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर फिर से इस समय के लिए जो कि आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि आपकी हजूरी में आ सकें, आपके समीप आ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर जिंदगी दी कि हम आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर हम में से हर एक के लिए कि आपने अभी तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है पिता परमेश्वर। हमारे सर के ऊपर आपने छत दी है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। हमें खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए आपने हर इंतजाम किए पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपके उस वचन के लिए जो कि आज हमें बताया गया। हम पिता परमेश्वर अपनी निराशाओं में आपको भूल जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर सच में हमें आपसे ही आशा रखनी चाहिए। हम कभी भी ये ना भूलें कि आप प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे लिए तैयार हैं। आप हमारी निराशाओं को, हमारी मायूसी को आशा में, आनंद में बदल देते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे वायदे के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक जन के लिए जिन्हें आपने संभाल के रखा है। प्रार्थना करते हैं खास तौर से पिता इस समय के लिए हर एक चीज के लिए पिता परमेश्वर जो कि आजकल हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द हो रही है, इस सृष्टि पे हो रही है पिता परमेश्वर, खास तौर से उस महामारी के लिए
प्रार्थना करते हैं कि उस महामारी में पिता परमेश्वर अपना वो सामर्थ्य हाथ रखिए ताकि वो रुक जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि लोग आपके तेज को, आपकी सामर्थ्य को, आपकी पवित्रता को समझ न पाए पिता परमेश्वर। वो अपना मन फिराने वाले हो सके और एक हमारे जीवित जिंदा खुदा पे भरोसा लाने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग उस महामारी से पीड़ित हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को आपकी चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। ये चंगाई केवल शारीरिक ना हो पिता परमेश्वर, परंतु आत्मिक होने पाए। कई रूहें पिता परमेश्वर आपके नाम से बचाए जाने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मेडिकल स्टाफ हैं पिता परमेश्वर, पुलिस हैं और पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं जो इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप हर एक को बचा के रखिएगा, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन अथॉरिटीज के लिए पिता परमेश्वर जो कि देश के लिए डिसीजंस लेते हैं पिता परमेश्वर, वो अपने मन से नहीं परंतु आपके सहारे से, आपकी बुद्धि से चलने वाले हो सके। उनकी अगुवाई कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो किसी न किसी दुख में है, किसी न किसी निराशा में है। आप पिता परमेश्वर उनको अपनी आशा दीजिएगा, अपना रोशनी दीजिएगा, अपना तेज दीजिएगा। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए, उनके साथ हुई पिता परमेश्वर, किसी को भी पिता परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए, परंतु पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय खजाने से आशीषों से मालामाल हो सके। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक मेंबर के आत्मिक जीवन के लिए भी पिता परमेश्वर, जैसे जैसे आप शारीरिक रीति से बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, बचाते हैं पिता परमेश्वर, वैसे ही हमें आत्मिक रीति से भी बढ़ाइएगा। हमें सामर्थ्य दीजिएगा, हमें वो मन दीजिएगा ताकि हम आपके वचन पे और आप पे बने रह सकें। ये वचन पिता परमेश्वर हम केवल अपने तक सीमित ना रखने वाले, इस वचन से पिता परमेश्वर हम दूसरी रूहें भी बचाने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया की सारी एक्टिविटीज के लिए पिता परमेश्वर जो आने वाले हफ्ते में होती हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक एक्टिविटीज को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक एक्टिविटी पिता परमेश्वर आपके नाम को ग्लोरीफाई करने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर एक कारण हो सके कि हम आप में आगे और आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सारी मिनिस्ट्रीज के लिए जो कि आपके नाम के लिए, आपके राज्य के लिए चल रही हैं पिता परमेश्वर। इस समय भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप उन मिनिस्ट्रीज जो चला रहे हैं उनके साथ होइएगा, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम का कलाम कहीं भी रुकने ना पाए, परंतु पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचने वाला हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय दूतों के बेड़े के लिए पिता परमेश्वर, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के एक एक मेंबर के ऊपर हो। अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की छाप हमारे ऊपर लगाएगा पिता परमेश्वर। शैतान का कोई भी वार, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हम पे वार न करने पाए। हर एक घर के भंडार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घर में जो भंडार है पिता परमेश्वर भरे पूरे रहे, किसी बात की कमी ना आने पाए। पिता परमेश्वर जो महामारी की वजह से कई लोगों की नौकरियां
कई लोगों के जीवन अफेक्ट हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप एक नया रास्ता निकाल के दीजिएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका भरोसा पिता परमेश्वर और हमारा भरोसा आप पे बना रहे पिता परमेश्वर। ये जिंदगी पिता परमेश्वर केवल आपको महिमा देने वाली होनी पाए। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, छोटे बड़े बुजुर्ग को। पूरे हफ्ते में आप हमें संभाले रखेगा पिता परमेश्वर, अपनी करीबी में रखेगा। ये सब मांग लेते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें और आज के वचन के आधार पर हम निराशा में नहीं, लेकिन परमेश्वर के आनंद में, हर्ष में और उत्साह से भरे हुए भरपूरी का जीवन हम लोग जी पाए। गॉड ब्लेस एवरीवन।